Very good morning to dear students, CATI members, and my organizing team. I think so. It is a generous introduction by Dr. Shinawat, and I will try my level best. What he has used the words from me, I can make it promising for you. Today's session regarding the project, he introduced very well, and definitely he is more than in a position to introduce that. Actually, skipping that all, I'm going to direct to my topic, which is about the breaking the barriers. So this is the first term which we have to understand before going to the integration and then work life and how we can have it while we are playing the role of women as a leader. So these are the different terminologies. We will touch one by one and move on. At the end, there will be definitely a question answer session and there will be a feedback for former. Whatever you are going to have during this session, you have to reproduce your feedback on that form as well. So be attentive while you are listening so you can be honest with the time you are going to spend here. You must learn something which may you excel in your fields while going back to your departments. Thank you so much. Now, as I explained that the first connotation which we have in our topic, that is about the breaking the barriers. May I ask, do you understand what is barrier? This is not a seminar or a lecture. This is a training. So it must be interactive and two-way. So Hurdles. hurdle is a synonym word. Yeah. Hindrance. Again. Yes. But what you understand from this term? Barrier, hindrance, hazard, hurdle. Like something stopped you. Yes, maybe this is a concept, something which is stopping you. आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. अभी शनावत सर ने बताया था बाइलिंगुअल रहेंगे. आपके जहन में बैरियर वर्ड के साथ क्या आता है? Madam, something that is preventing us from achieving a specific goal. Yes. Completely. Partially, or maybe completely, holding you back. maybe partially. मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर जो चीज आपकी स्मूथ फंक्शनिंग में हर्डल बैरियर वो कहलाएगी स्टॉपिंग और चेंजिंग द डायमेंशन और चेंजिंग द स्पीड ऑफ योर एक्टिविटी. तीनों चीजें आ गई. स्टॉप्ड, चेंजिंग द डायरेक्शन और इंटेंसिटी और स्पीड ऑफ द एक्टिविटी. अगर इनमें से कोई चीज भी आपको लगे कि जो मैं पहले कर रही थी या करना चाह रही हूं वो नहीं कर पा रही क्योंकि उसको करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए ताकि मैं ओवरकम कर जाऊं उस सिचुएशन को जो मुझे इसे स्टार्ट करने से रोक रही है. और अगर मैं स्टार्ट कर चुकी थी तो मुझे इसे आगे ले जाने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है. इसका मतलब है कीपिंग इन व्यू दिस कॉमन कॉन्सेप्ट, हमें ये समझ लेना चाहिए कि बैरियर एक्चुअली रेजिस्टेंस है. और अगर हम इसे मजीद लेकर जाएं तो बैरियर रेजिस्टेंस मीन्स अ प्रॉब्लम. A problem for what? A situation A which you are trying to deal is being resisted by the situation B. So there is no problem in the world except death which do not have any solution. Exactly. इसको जरा अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स सपोज ये एक सिचुएशन ए है, ये स्मूथली रन हो रही थी. सिचुएशन बी आई और इसकी वो फंक्शनिंग या तो रुक गई या स्लो हो गई या रिवर्स हो गई, यानी डायरेक्शन, स्पीड
ओवरऑल मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब है इसका असल बैरियर क्या है? बॉडी बी और सिचुएशन बी। तो इसकी प्रेजेंस ही इसका सॉल्यूशन है। अगर मैं इसे हटा दूं तो यू विल बी ऑन सेफ प्लेस एंड यू आर रीगेनिंग योर पोजीशन ए। इसका मतलब है वो जो इसका बैरियर है वही इसका सॉल्यूशन है। पहले तो इसे क्लियर कर लें। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें बैरियर के बगैर, हर्डल के बगैर, रेजिस्टेंस के बगैर आप ये इसकी सिचुएशन को बदल सके। और जो सिचुएशन इंटरवीन कर कर इसको बदलने में कामयाब हुई, आप उसको रिमूव कर देंगे तो वही आपका सॉल्यूशन है। यहां तक क्लियर है? ब्रेकिंग द बैरियर्स। तो ब्रेक कैसे करना है? सिचुएशन बी, सी, डी, whatsoever is creating disturbance in the smooth functioning, that is actually barrier. तो अगर आपको हम सब एक कंबाइंड कल्चर शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तानी कल्चर, उसमें मैं अगर आपको पूछूं कि आपकी नजर में औरतों को एम्पावर्ड फील करने में या एम्पावरमेंट के साथ एक्सेल करने में कौन सी सिचुएशंस हैं जो लगता है कि डिस्टर्ब कर रही है? जल्दी से, मुझे लगे कि आप जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। their own thinking, their own perception. पर्सनल फैक्टर, थिंकिंग। अगर हम देखें हमारी इनफॉर्मल और फॉर्मल जो हमारी सेटअप्स हैं, जो रोल्स हैं अंडर डेजिग्नेशंस, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं। इनफॉर्मल डेजिग्नेशन में मदर इन लीडरशिप रोल फॉर पेरेंटिंग, माँ का किरदार जबकि वो परवरिश और नशोनुमा कर रही है बच्चों की, ये एक रोल है। फॉर्मल है कि वो साथ टीचर भी है। बैलेंस तो ये है कि इक्वल टाइम, इक्वल वेटेज, इक्वल इंटरेस्ट, इक्वल एक्सीलेंस, शी मे एक्सेल। क्या मुमकिन है कि इंसान बैलेंस क्रिएट करने के लिए इक्वालिटी क्रिएट कर सके और अचीव कर सके उसे? नहीं। Someday I would be a better mother while I have a good quality time with my kids. Sometimes I negate every demand put forward from their side just to perform as a good teacher. At day I might be the good teacher but not the good mother. And when I took off from the duty and ignored my task of that day, and I'm just having good relationship with the kids, at that day I'm a good mother. तो फिर ऐसे मुमकिन नहीं है कि हम सारे अपने वर्क लाइफ में बैलेंस ला सकें। तो अगर बैलेंस नहीं ला सकते तो क्या कर सकते हैं? मैं अभी एक पीएचडी सुपरवाइज कर रही हूँ वर्क लाइफ बैलेंस पे, नर्सेस के। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि ये अचीवेबल नहीं है, सब्जेक्टिव है। We aspire for that, but totally we can't achieve it. It may not be possible for us. तो फिर क्या करें? बताइए जरा, क्या ज़हन में आता है? This is a very good comparative table. Leadership at home, leadership in public. Nature of role, key responsibilities, authority, visibility, skills required, recognition, impact, support system, challenges. देखिए, सामने देखिए, इतना कुछ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। If we are performing as a leadership at home,
and if we are performing leadership in public, वो कोई भी हो सकती है, जॉब प्लेस, इतना सब कुछ, इस सब के दरमियान बैलेंस लाना मुमकिन है? Nearly impossible. Hard nut to crack. Yes. You always have to face the bottleneck Yes, definitely. while going through the process. फिर इसे गौर से देखिए, पढ़िए, आपको मिल भी जाएगी शायद बाद में प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है वर्क लाइफ बैलेंस is a dream, is a goal with subjective approach, with more theoretical orientation. What would be the real terminology? That is actually work-life integration. यही टाइटल था ना हमारा। हम अपनी वर्क लाइफ और अपनी लाइफ के दरमियान बैलेंस नहीं ला सकते। However, we can travel from good to great by integrating among different rules. And how this integration would be possible? आपके ज़हन में क्या आता है कि ये इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल हो सकती है? इंटीग्रेशन है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बाद में भी आपको काम आएगा, इसे जरूर बाद में साथ रखिएगा। इंटीग्रेशन है क्या? वो देखिए मैंने लिखा हुआ है, वर्क लाइफ बैलेंस सुजेस्ट अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। हम रोबोट नहीं है कि जब मैं यहाँ हूं मैं कोई स्विच है जो ऑफ कर दूंगी और मैं मदर नहीं रहूंगी, वाइफ और सिबलिंग या फ्रेंड या समथिंग लाइक दैट नहीं रह रहूंगी। हाँ, मेरा कॉन्शियस मुझे मजबूर कर रहा है। एट करंट माय डोमिनेंट रोल इज बीइंग योर ट्रेनर एंड रिसेसिव द रेस्ट ऑफ, बट दे एग्जिस्ट एट दैट मोमेंट। सो हम सेपरेट या सेग्रीगेट नहीं कर सकते। तो फिर वर्क लाइफ इंटीग्रेशन क्या है? इज मोर अबाउट ब्लेंडिंग। चले आपके इंटरेस्ट से एग्जांपल देती हूँ। मेकअप करते हैं ना? You blend the blush, you blend the eyeshade, you blend the different cosmetics to look better, to harmonize, and to have a rhythm in your makeup techniques. ऐसा ही है। जिसको नहीं करना आता वो क्या करता है? ब्लेंड नहीं करता, जगह जगह स्पॉट और पैचेस छोड़ देता है। How would it look like? Like a joker. So, work-life balance is not achievable completely. However, blending of the roles make good give to go great. अब अगर हम इसको coexist करवाना चाहते हैं, यानी मैं अच्छी माँ भी रहूं, अच्छी टीचर भी रहूं, ट्रेनर भी रहूं, दोस्त भी रहूं, वाइफ भी रहूं, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहूं, तो मुझे जो डिफरेंट रोल्स की ब्लेंडिंग करनी है वो कैसे करनी है? पहली टेक्निक, मुझे इन्हें को एग्जिस्ट करवाना है। को एग्जिस्ट करना क्या होता है? How many departments currently we are having in this room? Yesterday, Dr. Shah told me out of 19, 15. 15 departments, yes. 15 department students are sitting here. It means you are from various departments but coexisting at the moment. इस coexistence के लिए क्या टेक्निक थी? A little bit from every. You all have been registered through another channel out of your department. इसका मतलब है आपने अगर अपने डिफरेंट रोल्स में कोएग्जिस्ट करना है तो सबसे पहले आपको टेक्निक और स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी जिसमें आप
ये जान पाएंगे कि आप इन्हें को एग्जिस्ट करवा रहे हैं बेसिंग ऑन सर्टन स्ट्रेंथ्स। इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप बकर कैंपस के स्टूडेंट हैं, बाहर से कोई नहीं है, तो ये क्या है? स्ट्रेंथ। अब अगर आपने को एग्जिस्ट करवाना है तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स की लिस्ट बनानी है। स्ट्रेंथ्स दो तरह की होंगी, ये क्या बता रही हूं, टेक्निक और स्ट्रेटेजी। कॉपीज हैं, लाइन लगाएं। पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड प्रोफेशनल स्ट्रेंथ। अब तो आपका बोर्ड भी रिस्पॉन्स लेता है। जल्दी से, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। आप देखिए, पर्सनल रोल यानी एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और पर्सनल से हटकर प्रोफेशनल रोल इस वक्त आपका स्टूडेंट क्या है, वो स्ट्रेंथ क्या है आप वन मिनट रह गया आपके पास। वॉलंटियर करें जिससे सबसे पहले लिख लिया। जल्दी से, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है एक्टिविटी, और उस पर टाइम नहीं लेते। वन वीकनेस वन स्ट्रेंथ, चले इस पे आके रुक जाते, जल्दी करें। पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यस, विल पावर क्या है आपकी? पर्सनल है, स्ट्रॉन्ग है, और वीकनेस क्या है? मैं आपको बता देती हूँ पर्सनल असेसमेंट कैसे करनी है। एज अ ह्यूमन बीइंग इनफॉर्मली जो जो चीजें आपके अंदर मौजूद हैं वो आपका पोटेंशियल कहलाएंगी। पोटेंशियल में आपकी आउटलुक भी आ जाती है कहीं ना कहीं, आपकी स्पीकिंग पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ऑनेस्टी, आपका डिसिप्लिन, आपकी पिच ऑफ वॉइस, आपकी अंडरस्टैंडिंग टू वर्ड्स द सर्टेन कल्चरल एस्पेक्ट्स, आपका एडेप्टेबल होना, आपका फ्रेंडली होना, आपका फसी होना, मेस क्रिएट करना, चीजों को क्लियर करने की बजाय इंटरमिंगल कर देना, विद स्ट्रिक्ट रिएक्शन एवरी टाइम व्हेन यू हैव टू इवन बी रिस्पॉन्सिव। आप रिस्पॉन्स नहीं करते, रिएक्शनरी रहते हैं, अर्ली राइजर है, नाइटमेयर्स क्रोनिक होते हैं। फिर ये वो चीजें हैं जो किसी इदारे ने नहीं दी, कहीं से डिग्री और सर्टिफिकेशन की सूरत, डिप्लोमा की सूरत सर्टिफाई नहीं करवाना पड़ा, बल्कि ये वो चीजें हैं जिनमें बाय पहली बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो 5 है वो कौन कौन सी है, जो हम लेके पैदा होते हैं, जिसे उर्दू में हाथ से हमसा भी कहते हैं, वो भी आपका पोटेंशियल है। उनके ऊपर बेस कर वो तमाम चीजें जो आपके अंदर मौजूद हैं वो आपका इनफॉर्मल पर्सनल पोटेंशियल है। उसमें एटीट्यूड भी है, बिहेवियर भी है, मैं उससे डिटेल नहीं कर सकती अब डेफिनेटली। एटीट्यूड, बिहेवियर, टेम्परामेंट, और उन सारी चीजों की वजह से आपके अंदर मौजूद डिसिप्लिन, कमिटमेंट, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, punctuality, might be unfortunately corruption, narrow escapes, backdoors, hitting below the belt। अब खुद ही समझ लीजिएगा किसमें क्या है। गुड लिसनर, गुड स्पीकर,
गुड मोटिवेटर, कुछ लोग होते हैं ना घर में, कोई बात नहीं अम्मी मानती तूने बेचते हैं। ये क्या है सारे? पर्सनल पोटेंशियल्स। प्रोफेशनल क्या है? दोज विच यू एक्वायर्ड आफ्टर एनरोलिंग एंड रजिस्टरिंग योरसेल्फ under certain certificate, diploma, degree, or you have fulfilled certain eligibility criteria. अब वो क्या क्या हो सकते हैं? अगर आप पर्सनली ऑनेस्ट, कमिटेड और रेगुलर और अर्ली स्लीप, अर्ली गो टू बेड की आदत वाले हैं, तो प्रोफेशनली क्या होगा? यू विल बी पंक्चुअल, यू विल नॉट बी बंकर, you will be participatory, you will be attentive, you will be regular. इसका मतलब है कि पर्सनल सेल्फ एक ऐसा घोड़ा है जिसपे आपकी प्रोफेशनल सेल्फ सवारी करती है नॉर्मली। वो एक्सेप्शंस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी और ड्यूअल रोल है, उसे हम नहीं देख रहे। Whatsoever you have personally in your potential, your professional self will somehow have the almost same picture. जो लेट सोता होगा वो हो सकता है उतना अटेंटिव ना हो, रेगुलर ना हो, बंकर हो, अच्छा लिसनर ना हो, नैरो स्केप ले, शॉर्टकट्स ले। देखिए एक क्वालिटी दूसरे को कैसे डिस्टर्ब कर रही है। तो याद रखिएगा, मैंने कहा है इंटीग्रेशन इज ब्लेंडिंग ऑफ द टू। तो काले में काला ब्लेंड कर दें तो काला ही आएगा, व्हाइट में पिंक ब्लेंड करें तो अच्छा शेड है ना। इट मीन्स योर पर्सनल traits, capacities, potentials will be going to blend with the personal to professional, and you are going to get a better shade of your personality. You will travel from person to personality. You will develop your persona. You will develop your aura. And due to this, certain personalities do have charisma of the personality. Everyone likes to speak with them. Everyone likes to have friendship with them. Everyone likes to work in their team. होता है? किसी बात पे मैं गलत कह रही हूँ तो डिसएग्री करें, आपका राइट है, हम उसे कमेंट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक एग्रीड है? इंटीग्रेशन समझ आ गई है क्या है? चलिए, इसमें चैलेंजेस जो है, परसिस्टेंट जेंडर नॉर्म्स। लड़कियां पढ़ के क्या करना है भाई? ऐसी है मोटरसाइकिल पे वही छोड़ने जाएगा, नहीं तो ये नहीं जा सकती। बूढ़ी दादी है, कुछ सेल करने भी जाना है तो पोते को उंगली लगा के जाएगी कि लोग क्या कहेंगे। टाइम स्केर्सिटी, ये होगा तो ये डेफिनेटली आएगी। बर्नआउट रिस्क, जब आप इतने प्रेशर में आते हैं आपको एकदम एग्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, ये अजीब अजाब है। मैं तो जा रही हूँ सही काम के लिए फिर भी इतने बैरियर्स, तो आप बर्नआउट हो जाएंगे। और बर्नआउट जब कोई होता है तो सारा पोटेंशियल, सारी एनर्जी कंज्यूम ऑल इन वेन। या तो कंज्यूम होके कोई आउटपुट आए ना, कंज्यूम हुई लेकिन फायदा कोई नहीं है। उस वजह से विजिबिलिटी बाइसेस भी फेल्स करने पड़ते। आप गए ही नहीं, आपने काम मर्जी से किया ही नहीं, आपको एक्नॉलेज भी नहीं किया गया और आप विजिबल भी नहीं रहे। इनफॉर्मल में तो हमेशा ये है, सारा दिन सारे काम करके रात को सारा दिन करती क्या रहती हैं आप? स्टार प्लस देखा होगा, ये किया होगा, नो विजिबिलिटी, तो फिर बर्नआउट और बढ़ जाएगा। एक क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल,
delegating support system, international prioritizing, technology usage, self care routines. इन सब में मैं इन पे ज्यादा रुकूंगी. This is the word of technology. This is the era of technology. If you want to be empowered in a way that you are enabled enough to blend your two roles. ठीक है, ना जाने दो मैं फ्रीलांसिंग कर लूंगी, ना जाने दो मैं यहां से पैकेट वहां भिजवा दूंगी सूप के थ्रू, मैं अमेज़न से लिंक हो जाऊंगी, मैं कोई ऐसा पेज बना लूंगी, मैं सर्विस डिलीवरी वाले को बुला लूंगी. इन एनी केस यू हैव द गुड एंड एफिशिएंट नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. सबसे आसान है अपने टास्क को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अगर करना है तो यू मस्ट हैव गुड एंड एफिशिएंट नॉलेज ऑफ. क्यों कह रही हूँ एफिशिएंट? टेक्नोलॉजी में तो अंगूठे रुकते ही नहीं मीम्स भेजते हुए. और अगर उसे कह दे टेक्नोलॉजी में मैं भी टीचर हूं ना, असाइनमेंट पे इसको करो जरा थोड़ा सा, उस वक्त 100 हीले बहाने, क्योंकि टेक्निक है एफिशिएंट टेक्निक नहीं है. सो ऑनवर्ड नाउ you have to focus on learning of efficient technology techniques. सिर्फ टेक्निक नहीं से काम नहीं. ठीक है, अब सेल्फ केयर क्या है? अच्छा खाना, बेहतर नींद, कम बर्नआउट, कम रिटेलिएशंस, कम रेजिस्टेंसेस. देखें कि वो कौन सी चीजें हैं जो गैर जरूरी हैं और आप उन्हें दूर कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें लुब्रिकेट कर. सबसे ज्यादा तकलीफ अगर घर की ग्रैंड मदर को है तो देखिए उनका भी कोई वीक पॉइंट होगा. Treat with that. This is actually the approach which is known as in social work exploitative approach, but it is more workable for the persons who are not literate. उन्हें कुछ तो पसंद होगा और कुछ ऐसे गैर जरूरी लोग होंगे उनकी कही बात पे बर्नआउट होना बनता नहीं है. First you have to choose who is important and who is not, to whom you have to listen, to whom you have not. उसकी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट क्रिएट करें. सेल्फ अवेयरनेस होगी, लिस्ट होगी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स की, फिर उसको यूज करते हुए इस टेक्निक को आप देखेंगे कि करना क्या है और क्या है जो नहीं करना. किसी के कहने पे गुस्से में आके जो कुछ बनाया था सेल के लिए उसे तोड़ फोड़ के फेंक दिया, तो उसको क्या है, वो तो बड़े आराम से खा पी रहे हैं. असल प्रॉब्लम किसकी है? आप ही. क्रिएट किसने की है? उन्होंने नहीं की. अब ये अगली टेक्निक सीखिएगा. नो एक्सटर्नल बॉडी may have the control of your body. Don't give your bodily remote to another body. You are human being, your threshold, your remote, your personal self, which is known as locus of control. You must have the control of locus of control. And locus of control is the body remote of individuals who get control over locus of control. They are the master of their bodies. They are not the slave of their body. They are master. They set their destinations. Destiny is settled by those personalities. आप पढ़ लीजिएगा जाके लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है. उसमें दो कॉन्सेप्ट आएंगे कि रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना. रिएक्शन फौरी होगा, लेस वाइज होगा और कंज्यूमिंग होगा. रिस्पॉन्स डिलेड होगा, वाइज होगा, लेस कंज्यूमिंग होगा, फुल ऑफ लर्निंग होगा. वो सीखना है और जो वो सीख लेता है वो बेहतरीन इंसान बन जाता है.
फिर रहमतुल्लिल आलमीन कहलाते हैं। कोई कूड़ा भी फेंके तो वो ना फेंके तो उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं। ये है सुप्रीम एग्जांपल ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल जो प्रॉफिटहुड से आ रही है। ऐसा कंट्रोल, यहाँ थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार दिया, गाली दी, गाली का जवाब गाली से दे दिया, गला खींचा, खींच दिया, उन्होंने रोकना चाहा, आप रुक गए, उन्होंने डिसीजन ले लिया, आपने अमल कर लिया। नो, इसके लिए रिहर्सल क्या कर रही है? अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, फिर उन्हें कंट्रोल कैसे करना है और रिमोट अपने हाथ पे कैसे लेना है। ठीक है, ये सेल्फ केयर। जिनको ये दोनों आती है ना, ये तो बड़ी ऊपर की बात है, उन्हें ये डेलीगेशन एंड सपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल करना आ जाता है। कुछ बच्चे कुछ भी नहीं माँ बाप से मनवा पाते हैं और कुछ सब कुछ खींच के ले जाते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इदारों के करने से रिलेटेड है। ये सारी चीजें 3, 2, 4, 5 आपके करने की चीजें, और जिनको ये आ जाती है ना, वो सिस्टम में बेटर इंटरवीन और कंज्यूम और एब्जॉर्ब होकर अपने लिए सब कुछ निकाल देते। क्लियर? इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। ये जो अभी आपने बात की, ये क्या क्या चीजें? environment, patriarchal settings, deep and lasting impacts। इन डीप एंड लास्टिंग इम्पैक्ट्स को आपने कैसे कंट्रोल करना है? यहाँ पर ना एक सोशल वर्क टीचर, जरा टेक्निक ले लीजिएगा। सबसे पहले कोई दूसरा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, कोई दूसरा हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई दूसरा हमारे लिए डिसीजन नहीं ले सकता। ये सबसे पहले खुद को बताना है। This is actually your thought which create the problem, which create the insult, which create that the others do have the control। अपनी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है सबसे पहले। इन्होंने जो बोला, वो थॉट प्रोसेस पीछे कॉग्निशन का हिस्सा है। कभी और एक है, वर्कशॉप हुई तो मौका मिला उसे डिटेल में करूंगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनरी ज्यादा, सेकंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिव ज्यादा। फर्स्ट ऑर्डर भी सीखे, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग भी सीखे, लॉजिकल रीजन उसकी क्रिएट करें, और फिर देखें कि अगर किसी ने वॉमिटिंग की तो मैं शर्मिंदा होंगी, उसके बैड वर्ड्स और अब्यूज टुवर्ड्स मी, उसकी सोशल वॉमिट है, तो मैं कैसे जिम्मेदार हो सकती हूँ उसकी? मेरी इंसल्ट कैसे हो गई? वो उसकी इंसल्ट है। सो व्हाट कैन आई डू? आई शुड वॉक अवे, वॉक आउट। किस लिए? चीटे ना पड़ जाए। तो सबसे बड़ा बैरियर लोगों की बात है, जो आप सोचते हैं और रुक जाते हैं। लोगों की बात उनको बयान कर रही है, आपको नहीं। कोक के गिलास से कोक ही बाहर आएगी ना। तो वो बता रहे हैं कि वो कैसी जिंदगी जिए हैं, व्हाट दे हैव लर्न थ्रू द एक्सपीरियंसेस, और इस कंटेनर में क्या है उनके, व्हाट टू डू विद अस। लिहाजा कोई हमें रोक नहीं सकता फॉर एथिकल अटेम्प्ट्स। वो इनडिसेंट एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे हम, उसके कुछ और पैरामीटर्स हैं, वो डिस्कशन का मैटर नहीं है। Whatever which is suitable for the empowerment of women, that is actually your own supreme power, power of your personality, which will create persona, aura and personality. Locus of control will be in your control. You will logically think and reason out that what to do, what not to do. Clear?
पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर सबसे पहले थिंकिंग का किसी ने जवाब दिया था, फिर ये दिया था। वो कैसे कर रहा है ये रेड जोन को देखिएगा। वो जो बड़ा हुआ है ना साइकिल, मैं अगर एक्सप्लेन करूं, मैं अच्छा खासा जा रही थी, करना चाह रही थी, तो क्यों नहीं कर रही? वो ऐसी बात कर दी दादी ने, टीचर ने, मेरा मोरल डाउन हो गया, मेरा मूड खराब हो गया, फिर मैं उससे भी लड़ पड़ी, फिर उनको भी मैंने ये कह दिया, फिर वो सारे ही बिखर गए, फिर टीम टूट गई, फिर सफे फाड़ दिए, तो फिर अब क्या? अब कुछ भी नहीं। ये सारा काम मेरी टीम ने किया था, मैंने किया था, वो मुझसे पहले चला गया, बास के पास एक्सप्लेन कर रहा है, तो अब फिर खत्म। एक थ्योरी है रेड जोन थ्योरी, उसे फिर कभी आप पढ़ लीजिएगा। रेड जोन थ्योरी ये कहती है एक की रेड एंगल दूसरे को टकराती है और उसे भी उसी बात स्फीयर में ले आती है, वो नहीं करना। यू ग्रो आउट ऑफ डिफिकल्टीज, योर फेलियर गिव यू अ न्यू डायमेंशन, योर फेलियर इज अ न्यू डायरेक्शन, अचीवमेंट इज कंप्लीशन एंड कंप्लीशन इज द एंड। वो गाना आया हुआ ना, जो मुकम्मल हुआ है वही खत्म हुआ है। When you achieve that end, when you lose, you learn, you emerge, you evolve। ये फिनोमेनन है। तो इस विशियस साइकिल में जाना फेलियर है, लेकिन उससे निकलना आपकी ताकत है। और मैंने शुरू में कह दिया था कोई फेलियर अल्टीमेट फेलियर नहीं है, जिसका मतलब है एवरी टाइम यू हैव टू टेक यू टर्न। सियासत में बड़ा बुरा माना जाता है ना, लेकिन स्मार्ट अप्रोच इज दिस, इफ समथिंग इज क्रिएटिंग हर्डल, टू रिटेन योर एनर्जी विद यू इज बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, टेक द यू टर्न। उससे क्या होगा? आप साइकिल से तो निकल जाएंगे। When you are over with that cycle, now you have a U-turn, stay there for a while and think the new route। एक रास्ता तो नहीं जाता होता ना। If you used one, you have to reroute like Google Map to get that destiny। कल मैं और मेरे हस्बैंड आ रहे थे, तो बार बार घूम रहे थे, हमने सर भुगताया, और जिधर घूमते थे ना वो एक नया रूट जरूर बना देते थे, चाहे आगे से बंद ही होता था। वो बार बार मैं कहती कच्चे में उतर जाओ, वहां जहां कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन उसे ये पता था कि इससे आगे वो वाली जगह है, तो उतर जाओ। तो आपने यू टर्न लेना है, डायमेंशन चेंज करनी है, वहां जाना है, साइकिल से निकलने की सक्सेस को महसूस करना है, और वहां जाके एक नया डायमेंशन, नया रूट रीरूट करना है। इसका मतलब हुआ रुकना नहीं, और रुकना नहीं एम्पावरमेंट की पहली सीढ़ी है। कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये और कॉन्सेप्ट है, मैं खुद ही रोक रोक के बोल रही हूँ, तो वो फिर हैवी लोडेड हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है ये? अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर, वर्क प्लेस बायसेस, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसका मतलब है ये चैलेंजेस हैं, तो असल में यही सॉल्यूशंस है। अनइक्वल को इक्वल कर दो, इधर इक्विटेबल कर दो। इक्वल तो हो ही नहीं सकता, इक्विटेबल कर दो। वर्क प्लेस बायसेस एंड एक्सपेक्टेशंस को कैसे रोका जाए, ये आगे बताऊंगी। लैक ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट को सपोर्ट में बदल दिया जाए, और कल्चरल मैसेजिंग जो अभी हम दे रहे और कर रहे हैं कि हमने ऐसे नहीं सोचना, मैं मजबूत, आप मजबूत, एक एक करके सब मजबूत।
और फिर फेस करना रेजिस्टेंट और बैरियर्स को आसान हो जाएगा। सर मैं पढ़ाते हुए टाइम ही देख रही, कितना टाइम रह गया हमारे पास? Ma'am, we have 20 minutes. अच्छा, वो क्या थे? बैरियर्स। ये क्या है? ब्रेकिंग द बैरियर। कैसे? आप पढ़े ना, मुझे पता चले कि नजर आ रहा है आपको। अब एक मिनट रुकिएगा। अब ये नहीं कि आप जॉब भी नहीं कर रहे, आपने घर का रोल संभाला हुआ है, तो आप कह रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि मैन शुड बी ऑन टेकिंग केयर गिवर रोल, तो करो। नहीं, मैंने इसलिए कहा इक्वल नहीं, इक्विटेबल। और इक्विटेबल का आपको कॉन्सेप्ट आता है? अगर मैं यो खड्डे से बनाऊं तो मट्टी डाल के लेवल करने के लिए कहीं हमें थोड़ी, कहीं ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा लेवल अप करने के लिए जिसको जितनी जरूरत, रोल को डिफाइन करके रीस्ट्रक्चरिंग और रीशेपिंग ऑफ द रोल परफॉर्मेंस के थ्रू जो जिस तरह से बेहतर और आसानी से कर सकता है वैसा स्ट्रक्चर डेवलप करना। तो कैसे हो सकता है? जब आप बेस्ट कम्युनिकेशन करना जानते हो, गुस्से में आके लड़ना नहीं, बात मनवाना और कायल करना जानते हो, तो सबसे ज्यादा काम किस पे करना है? अपने आप पे। फिर सबसे ज्यादा जरूरी उसके बाद हमें इसको समझना है। उसके बाद हमें समझना है कि ये इक्विटी है और ये जहां जहां ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे जैसे हम कर सके। अगर हम सुप्रीम लीडर हैं तो डिसीजन मेकिंग की पावर है, डायरेक्ट डिसीजन और पॉलिसी होगी। अगर हम रिसर्चर हैं तो रिसर्च के थ्रू पब्लिश करके बता सकते हैं, सेमिनार करके, ट्रेनिंग करके, कॉन्फ्रेंस करके, गपशप करके, बस ग्रुप सेशंस करके, टेबल कॉन्फ्रेंसेस करके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करके, डायलॉग करके अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाना है। जिस जगह जहां जैसे कर सके वो करने की कोशिश करें। सम स्ट्रेटजीज, इस पे जरा फोकस कर लीजिएगा। मैं भी उधर से आके पढ़ती हूँ, मैं आगे से हट रही हूँ ताकि अच्छी तरह पढ़े। क्या है? Identify the barriers. Social, societal expectation, gender roles, the double shift, implicit bias, lack of mentorship, ये सारे रेड zones हैं। Rethinking the narrative, debunking the having it all myth, ये myth कल मैं सर अबू बकर हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी। यानी समझना कि अगर तुमने नौकरी करनी है ना और घर संभालना है तो तुम तो आइडियल ही होनी चाहिए हो, फौरन सारा खाना भी हो, बच्चे भी हों, संभले हुए, घर भी, नौकरी भी। ऐसा नहीं हो सकता, ये एक मिथ है, फैब्रिकेटेड फैक्ट है जो मैंने शुरू में कहा अचीवेबल नहीं है। कंप्रोमाइजेस विल बी देयर, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन विल बी देयर और सैक्रिफाइसेस विल बी देयर। किसी दिन कोई रोल कुछ डिमांड करेगा, किसी दिन कोई रोल कुछ डिमांड करेगा। जितनी एक्सपर्टीज होंगी हमारे अंदर हम उतनी जल्दी उस रोल को कर लेंगे, उतनी बेहतर तरीके से कर लेंगे। कुछ लोग 10 मिनट में एक रोटी नहीं पका सकते, कुछ 10 मिनट में 12 पका लेते हैं। दिस इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफिशिएंसी। इफ यू आर प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट इन योर पोटेंशियल्स, you are best in the roles if you have the capabilities, if you are enabled, तो फिर आप यूं करके फर्क हो जाएंगे, निकल जाएंगे and you will have plenty of time to entertain yourself, me time जिसे कहते हैं आपको। strategies for integration क्या है? setting the boundaries not the wall। अच्छा ठीक है, फिर मैं माँ बनती ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं माँ हूं तो मैं जॉब करती ही नहीं। वॉल्स नहीं बनानी, बाउंड्रीज इतनी
जिसे जब चाहूं जिधर से चाहूं क्रॉस कर सकूं, वो मेरे रोल्स को डिस्टर्ब ना करे इसलिए बनाई, पर मुझे ना वो ले जाए साथ एक डायमेंशन में। इतनी लिवरेज, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मैं सारों को जंप करती करती हर जगह घूम फिर के अचीवेबल बना दूं उनको, थ्रू एक्सेसिबिलिटी, थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? आगे वर्क एनवायरनमेंट, टाइम प्रायोरिटाइजेशन टूल और सपोर्ट नेटवर्क। ये जो है ना, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स के अंदर ओवरऑल डिमांड स्ट्रक्चर है। ये आप नहीं करेंगे, ये जो लीडिंग रोल जिनके जिम्मे ये है, आप सुजेस्ट कर सकते हैं, प्रपोजल्स दे सकते हैं, अपनी आवाज बेहतर तरीके से एडवोकेसी के थ्रू रिटन और अनरिटन वहां लेके जा सकते हैं कि ये हो सकता है, हमारे लिए बेहतर है, ये डुएबल है और ऐसे है, प्लीज इस तरह कर लीजिए। और उसके बाद ये जो टाइम प्रायोरिटाइजेशन है ना, डियर स्टूडेंट, जिसकी टाइम मैनेजमेंट ठीक है ना, वो जिंदगी का हर कंट्रोल अपने कंट्रोल में ले सकते। ठीक है? और सपोर्ट नेटवर्क्स में लिवरेजिंग कम्युनिटी मेंटोरशिप एंड पार्टनरशिप, ये जो बेस्ट एग्जांपल इस प्रोजेक्ट की है। कहां कहां से आप डाइवर्सिफाइड ग्रुप, फैमिलीज, ओरिजिन, रिलीजन, मैं कहां से, वो कहां से, ये कहां से, और पीछे सपोर्ट सिस्टम लंदन से चला हुआ, ब्रिटिश काउंसिल और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, आई थिंक सो, सिनर्जाइज हुए, इंटीग्रेट हुए। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन। अकेले शायद कोई भी ना कर पाता। मैं क्यों आती, मैं क्यों आपको बोलती, पढ़ाती, मैं आपसे क्यों फीडबैक लेती, मैं आपसे कैसे सीखती, अगर ये ना होते और ये कुछ भी ना कर पाते, अगर पूरा सपोर्ट सिस्टम इस एकेडमिक कम्युनिटी में लिवरेज ना देता इनको ये सब बैलेंस और मैनेज करने। द गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन। पत्तियां बिखरती नहीं, बल्कि फूल से फूल जुड़ते हुए बुके की सूरत बेस्ट फ्रेग्रेंस के साथ आती है। आपने दिए थे ना, जो एक खुशगवारियत का एहसास हो गया, जिसमें सबसे अहम माइंडसेट क्या अहम है, और माइंडसेट का ताल्लुक है थिंकिंग से, और थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद कल्चर, सिस्टम, फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिविटी टू गेन सक्सेस, no one left behind, through equitable access to resources with good mindset to produce your performance from good to great to make you successful. Quick question? Create environment where balance is not a burden, actually the definition of integration. जहां बैलेंस बर्डन ना रहे, वो बैलेंस नहीं बल्कि इंटीग्रेशन का मॉडल बन जाता है। थैंक यू सो मच। रिपीट कर रही हूँ, ब्रेकिंग द बैरियर, लीडरशिप, फॉर्मल इनफॉर्मल, बैरियर्स, इंटीग्रेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, challenges, strategies to control, locus of control, work on yourself, thinking, first order, second order, and then create integration rather than balance. Yes, मेरे ख्याल में सर आप हाउस ओपन कर देंगे क्वेश्चन। Yes, ma'am. Thank you very much for your thought-provoking talk today.
And now we will have question answer session and interactive session 2. आपके पास कोई questions हैं, कोई comments हैं, तो या it's an open forum, it's an open discussion. So floor is yours. Any questions? आप हाथ खड़ा करते जाएं ताकि वो बारी बारी मैं भी लेता जाऊंगा कुछ. ये कर ले, इससे शुरू कर ले. Yes. You said work-life balance is impossible, but by work-life balance techniques we can do it and implement. वर्क लाइफ बैलेंस मैंने कहा इम्पॉसिबल है, तो नेक्स्ट सॉरी कम अगेन. By work-life balance techniques we can implement work-life balance. Actually, when we put forward any technique, it doesn't mean that 100% results will be there. कोशिश ये की जाती है कि when we aspire for that ideal situation, at least we can get good out of that. Achievable 100% नहीं है. मैंने बार बार कहा, मैंने impossible word ही नहीं बोला. मैंने कहा था it is not achievable 100% or efficiently. ये सिर्फ एस्पायर किया जा सकता है, अज्यूम किया जा सकता है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये होना चाहिए, ये होगा नहीं. हाँ, हम इंटीग्रेशन के थ्रू इसकी बेस्ट एग्जांपल सेट कर सकते. Thank you. एक्सीलेंस के मॉडल दिए जाते हैं ना कुछ, तो उसमें जरूरी नहीं होता. कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे आप अगर कोई साइंस के भी करते हैं तो कहते हैं कीपिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट. तो जो हमारी सोशल लाइफ है ना, उसमें जब भी कोई मॉडल या स्ट्रेटेजी दी जाती है, हम सोशल फैक्टर्स को कंट्रोल्ड ग्रुप में भी वैसे कंट्रोल करके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. लिहाजा यूजुअली 100% अचीवेबल नहीं होता. वो सब्जेक्टिव मॉडल होता है. Limitations. हाँ, लिमिटेशन. जी बेटा. मैम मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी. मैम आपने कहा कि हम लाइफ में जो सोसाइटी है, ये जितने भी हमें परवाह उसकी नहीं करनी कि लोग हमें क्या कह रहे हैं या क्या, लेकिन मैम ये हकीकत है कि हम जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ के फिनोमेना हम पे इम्पैक्ट भी करते हैं और इफेक्ट भी करते हैं. बेटे, इसके लिए मैंने कहा था कि पहले शॉर्टलिस्ट करना है कि परवाह करनी किसकी है. वो कहने वाला कौन है आपकी जिंदगी में, उसका रोल क्या है. अगर तो कहने वाला आपका पेरेंट्स में या गाइड या मेंटोर है और वो और आप ट्रस्ट रिलेशनशिप में है, तो आप सोचेंगे कि उससे जो मुझे कहा उसे मैं फर्स्ट थॉट, सेकंड थॉट और लॉजिकली रीजन आउट करो. लेकिन अगर वो बिल्कुल नॉन कंसर्न पर्सन है और उसका मकसद ये सिर्फ आपकी स्मूथ फंक्शनिंग को रोकना है, तो फिर स्ट्रेटेजी कुछ और होगी. वो जो मैंने बताई थी कि फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, लोकस ऑफ कंट्रोल और रिमोट उनको नहीं देना. उनका आपने उनको उनके हाल पे छोड़ना है. आपने अपने फोकस करनी है स्ट्रेटजीज और अपने मैकेनिज्म सेट करने हैं जो गोल के करीब ले जाएं. और जो अपने टोकते हैं उन्हें बैठ के सोचें कि इन्होंने जो मुझे कहा उसमें किस हद तक लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू मेरा फायदा है या नुकसान है. और अगर लगे कि वो भी तो परफेक्ट नहीं है, हो सकता है उनकी सोच क्लासिकल मॉडल को फॉलो करती हुई सोच हो, तो ऐसे सूरत में मैंने कहा था उन सब की कोई ना कोई वीकनेस होगी. एक्सप्लॉयटेटिव अप्रोच से एक्सप्लोर करें और ट्रीट करें. पाकिस्तानी भी ये जुगाड़ बहुत जल्दी निकाल लेते हैं. जी. Any question? Yes. मैम, वर्क प्लेस पर या फॉर्मल सेटिंग में खवातीन के साथ हैरेसमेंट एक रियलिटी है और हम ये देखते भी हैं. तो हैरेसमेंट को फॉर्मल सेटिंग में हम कैसे डील करें? अभी मैंने रिसेंटली अपना प्रोजेक्ट खत्म किया है किसी के साथ, NRPU का, विसल ब्लोइंग पॉलिसीज इन HEIs, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या वर्क प्लेस पे किस तरह से विसल ब्लो कर कर ऐसे तमाम रवैयों को रोका जा सकता है. हम हैरास पहले तो इस तरह से होते हैं कि हम दूसरे को इजाजत देते हैं कि हमारा पर्सनल जोन तोड़ता है और अंदर आ जाता है. मैंने अभी कहा आपने एक शेल क्रिएट करना है प्रोफेशनल, और इतने मजबूत होना है कि कोई पर्सनल जोन को तोड़ के अंदर ना आ सके. अगर वो आ गया है तो फिर आपको आना चाहिए हाउ टू ब्लो द विसल. विसल ब्लो करने के दो तरीके हैं, एक इंटरनल विसल ब्लोइंग और एक एक्सटर्नल. इंटरनल, इमीडिएट अथॉरिटी क्लोजेस्ट टू यू, टू होम यू हैव द ट्रस्ट, वहां जाएं, वर्बल भी रिपोर्ट करें, रिटर्न भी करें. और अगर आपको लगता है कि वो भी इन्वॉल्व है इसमें और वो कुछ नहीं करेगा, फिर एक्सटर्नल बॉडीज, आप बहुत सारी अम्बस पर्सन्स
और बहुत सारी हैरेसमेंट की कमेटीज बन चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में। पंजाब लेवल पे स्पेशली इनका काम हो रहा है। उनके नंबर बल्कि सर इसी वर्कशॉप की वसातत से वो तमाम नंबर्स जो हैरेसमेंट को फेस करने के बाद आप एक्सटर्नल और इंटरनल विसल ब्लोइंग के लिए यूज कर सकते हैं, उनको ऑर्डर है कि वो आप अपने डिफरेंट प्रोमिनेंट वॉल्स पे पूरी यूनिवर्सिटी और वर्क प्लेस पे हैंग करें। कंपल्सरी है, रूल्स का, लॉ का हिस्सा बन चुका है। आप फौरन वो नंबर डायल करें, आप उसको रिपोर्ट करें और आप सेफ साइड पे। जब तक हम डरते रहेंगे वो डराते रहेंगे, लेकिन ना डरने का मकसद ये नहीं है कि सीधे जाके उसे टकरा जाएं, चैलेंज दें और अपने लिए मजीद रिस्क प्रोवोक करें। उसके सेफ और इस मैम वैसे यहाँ पे इंडिजिनस जो है वो हमारे मैकेनिज्म मौजूद है, बच्चों को प्रोपोगेट भी किया हुआ है। If they have any issues like that, जी। then they can report. इट इज गुड। उसकी इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ भी काम कर रहे थे, CDF पे मरियम खान उस पे काम कर रही हैं, GPV के हवाले से हम उसके मास्टर ट्रेनर भी हैं। तो उन्होंने सेफ प्लेसेस इंक्लूसिव और टू कंट्रोल द हैरेसमेंट यूनिवर्सिटीज में डेवलप करने का फैसला लिया। हम उनके पार्टनर बन गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैं ऑलरेडी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करवा रही थी ताकि एक रेफरल मैकेनिज्म डेवलप हो जाए कि फौरन जो है वो स्टूडेंट जो है रिपोर्ट कर सके और उन्हें पता हो कि ये डील हो कि हमें एलियन एनोनिमस ट्रीट करते हुए हमें एंटरटेन करेंगे। तो वो आपकी यूनिवर्सिटी में भी करवाया We would जाएगा। love to collaborate with मैं you. को ma'am. एडवाइजर भी हूँ एंटी हेरेसमेंट सोसाइटी की जी। यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपने ये बताया हुआ सबको? मैम अभी हमारी कैंपेन चल रही है, लास्ट वीक भी थी, इस वीक भी है, और हम क्लास टू क्लास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आपको कोई भी उसके लिए ना आप जाएं भी। जी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया 3 साल के प्रोजेक्ट में, Yes. टू मेक द पॉलिसी और सम सिस्टम ओके इज इम्पोर्टेंट, बट डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं है कि सिस्टम अवेलेबल है एंड हाउ टू रिपोर्ट, वेयर टू रिपोर्ट, व्हेन टू रिपोर्ट, ये इन्हें पता होना जरूरी है। उसके मैकेनिज्म्स दीवारों पे लगा दे। ठीक, थैंक यू। Yes. You please. मूवमेंट यूँ होता है कि जब हम कोई बैरियर तोड़ते तोड़ते हमारे अंदर इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। वो बैरियर टूटे ना टूटे वो अलग बात है, लेकिन हमारे अंदर वो हम टूट जाते मोटिवेशन, हैं। वो इंटरेस्ट ही नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई शॉर्टकट यूज कर लेना चाहिए कि हम बैरियर को वहीं छोड़ दें, उस चीज से निकलने का कोई शॉर्टकट ले लें? नहीं बेटे, शॉर्टकट से बेहतर लफ्ज ये है कि जब आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लोएस्ट लेवल को अपने अंदर फील करते हैं और आप समझते हैं कि अब एनर्जी नहीं बची, अब नहीं मैं करूँगा, तो ऐसी सूरत में कुछ स्ट्रेटजीज हैं, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स हैं। पहली, सोशल वर्क ये मानता है कि हर इंसान खुद से कोशिश करता है। अगर वो फील करे अब नहीं होगा तो ही और शी मस्ट सीक फॉर एक्सटर्नल हेल्प। एक्सटर्नल हेल्प में सबसे पहले आपको वेल बीइंग ऑफ योर सेल्फ के लिए काम करना है। तो आपको अपने उन टूटे हुए जो खिड़कियों को समेटने के लिए किसी काउंसलर की मदद जरूर लेनी चाहिए। जब आप एक दफा मेंटली गुड फील करेंगे तो आप इतनी एनर्जी रीगेन कर पाएंगे कि आप अपने उस तयशुदा काम के लिए दोबारा उठ पाए। तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं। बुखार होता है डॉक्टर पे जाते हैं, आपको कोई और सिकनेस होती है आप जाते हैं। सोशली जब आप मिसफिट फील करते हैं वो सोशल डिजीज है जो कि सोशल वर्क की डोमेन है। तो ऐसे में हम दवाई लेना पसंद ही नहीं करते। तो ऐसे में पड़े रहने से, काम छोड़ देने से बेहतर है कि आप जो है सेल्फ केयर का एक प्लान ले लें उनसे। अगर नहीं ले सकते तो ऑनलाइन बहुत सी सेल्फ केयर के ट्रीटमेंट मॉडल्स पड़े हुए हैं, जिसमें रिलीजियस थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है, फिर सेल्फ केयर में सेल्फ असेसमेंट और शॉर्ट मॉडल्स हैं ABC के, जो कि अभी यकीनन मैं उस डिटेल में नहीं, लेकिन आपको अपनी इस सेल्फ केयर के लिए सबसे पहले किसी से राब्ता करना या ऑनलाइन कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स को लेना, अप्लाई करना, यू विल फील गुड एंड बेटर। अगर आप इनसे नंबर ले लेंगे तो मुझे बाद में फोन कीजिएगा, मैं एक दो और चीजें भी आपको मैम ये जो बच्ची ने क्वेश्चन किया, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड शी इज इन 8th सेमेस्टर। तो फिर आपको तो कल ये वर्कशॉप करा रहे हैं ऑन एंजाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो उसकी एडजस्टमेंट टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स। हाँ जी मैम, तो मैं इसीलिए उसके तो उसे ये बुलवा लें उधर। हाँ जी मैम, तो ये मैम यही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए होंगे ना आपके पास। तो इसीलिए मैं इनके तरफ से इन सब बच्चियों को भी बताना चाहती हूँ कि कल आप आए। सबसे पहले प्रॉब्लम जान लेना जरूरी है। जी। मैं छोटा सा बता रही हूँ, डायसेक्ट करें, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, रीजन आउट करें और जो वजह है उसे दूर करने की कोशिश करें। आप ऐसे ही फ्री हो जाएंगे स्ट्रेस।
जी बेटा, yes. इसको कहते हैं एबीसी ट्रीटमेंट प्लान फॉर कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया. A mean awareness, B mean balance, or C mean control. Who is well aware about the problem, they can dissect and they can create the balance. And when you achieve the balance, you can control the situation. The shortest therapeutic treatment is ABC model. जी. जी, next quick question. Yes, again, okay. हमारी लाइफ में बाज़ औक़ात अगर एक बैरियर है, वो एक इम्पोर्टेंट फिगर है हमारी लाइफ का, जैसे पेरेंट्स हैं, और वो बैरियर उन्होंने ऐसे क्रिएट किया हुआ है कि आपके पास कन्विंस करने की गुंजाइश भी नहीं है अपने उस गोल को अचीव करने के लिए. तो इस सूरत में ना हम उस बैरियर को मैनिपुलेट भी नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते, उसमें हमारी कुछ इमोशनल. बेटे, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है, कोई भी शख्स आपकी जिंदगी का बैरियर नहीं होता. उसका एटीट्यूड, उसकी सोच या उसका रवैया आपका बैरियर हो सकता है. और ये लिख के रख लीजिए, एवरी एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज मेंडेबल, रीशेपेबल, पॉलिशेबल, ट्रीटेबल. यू हैव टू लुक कि आपने इनमें से कौन सा उठाना है. मेंड करने की जरूरत है, रीशेप करने की जरूरत है, पॉलिश करने की जरूरत है, या रीशेप के साथ रीस्ट्रक्चरिंग की भी जरूरत है. ऐसा हो नहीं सकता कि वो ट्रीट ना हो सके. मैम आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैम ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग मैंने खुद भी देखे अपनी लाइफ में, जो पहले बहुत ज्यादा सख्त मिजाज थे, Stubborn होते हैं, बोलते ही नहीं थे orthodox कि होते हैं. लड़कियों को पढ़ाएंगे, लेकिन अब उन्हीं की बेटियां डॉक्टर बन रही हैं. और कोई इसलिए वो शख्सियत नहीं, उस शख्सियत का वो रुख पहचाने. और फिर बुखार की बीमारी में बुखार की दवाई है, सर दर्द, लंग्स, डिफरेंट मेडिसिन है, एक तो नहीं ना दे सकते. शुगर, ब्लड प्रेशर, कम्युनिकेटिव डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेटिव, डिफरेंट मेडिसिन, मेडिसिन तक पहुंचे. जी जी बेटा, और कोई क्वेश्चन ऑडियंस में से, कोई कमेंट्स हैं फैकल्टी में से? यूआरएल कोड और वो आपने क्यूआर कोड वो मैंने इश्यू कर दी, वो शेयर कर दिया, वो कर देंगे. ठीक. हार्ड कॉपीज में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है, आपके पास आ गई होगी. वो एक पेज मैंने दिया था, दूसरा मैंने वो अपना जो वो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है उसमें भी शेयर कर दिया है. तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वन, ओके, ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन आंसर सेशन. तो उसके ऊपर आप जो है वो काइंडली फिल कर दें. आप अपना ईमेल एड्रेस वहां पे देंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट भी उसी ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे. मैम प्लीज मैं बाहर एक मिनट सांस ना लेना. फ्रेश एयर में. तो यहाँ पे बाय नेट नहीं चल रहा. बेटा वो खुद ही मैनेज करें आपस में. यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. थोड़ा सा वो मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू था यहाँ पे. During the talk, Ma'am Rabia Sabah, in charge psychology, and Ma'am Iram Jamil, in charge English, and she is also our director academics. She joined us. Thank you very much, ma'am. And as we come to the end of this training session, if you have any questions yet, तो आप लोग कर सकते हैं. कोई कमेंट्स हैं या कोई भी अपने डिस्कशन इस हवाले से करनी है तो अदरवाइज वी विल जस्ट इन द राइट टाइम. एंड सो एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन, एंड आई होप the audience will have enjoyed, I mean, today's topic, work-life integration for women leaders. So it was actually very fruitful talk. So your active participation to questions and engagement made this session truly meaningful. So I would like to thank you very much who just came, and I would like to also thank our resource person, Professor Dr. Usma Ashik, accompanied by the Dr. Abu Bakr Saab. So I will just take short time to introduce him. He is also from Sargodha University and the husband of the Professor Usma, and he is in Auric. I mean, Kalamdan inke paas hai Auric ka. So he is very active there, mashallah.
And now, I mean, this is a very nice addition to the list of my friends, you know, because I had a very nice talk last night. And he's a person with a very nice personality, you know, very pleasant person. Sorry to cut you, and I do acknowledge कि मेरी ये सारी की सारी जो है ना सक्सेस स्टोरी मेरे फादर की बाद इनकी वजह से है। अच्छा, माशाल्लाह। That is a supportive, you know, a very supportive attitude, and that's what we are expecting. Otherwise, it's impossible for the workplace women. Like my If the father, husband is not cooperative, like my father. Yeah. It's a nightmare then, you know. if Yes, the yes. husband is not cooperative, they can't maintain even the mental balance. Yes. Not I- workplace balance. I would say that one of the partner is, if it is Yeah. not, he or she is Otherwise, not supportive, that will be actually. So, वो gender discrimination है ना. नहीं पेट्रियार्की का जिक्र हो रहा था ना तो हाँ। उसको आने में। सही, सही. आपने वो patriarchal को balance किया. Okay, so I would like to thank Professor Saba and for sharing your expertise in this regard. So at the end, learning is continuous journey. Let's stay committed to growth and excellence, you know. So that is our point, and I hope you have learned so much things, might be new ideas, and I know that there are many students, and I had request from the social work department especially. वो जब registration हो रही थी, because we have limited seats here for. कभी हैं स्टूडेंट सोशल Yes, yes. कि कौन है social work में से जरा हाथ खड़ा करें. So that have more than, I mean, that optimum. सफदर साहब रमेश एंड इसाक ओके Yeah, ये वो यहाँ पे रहे माय हमारे पास. स्टूडेंट्स तो वो मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की इनके इंचार्ज ने कि सर वो क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े जो हैं वो ईगर हैं टू पार्टिसिपेट इन दैट वन, तो हमारे पास कुछ रूम भी रहा तो हमने फिर अकोमोडेट किया उनको ना. मैंने कहा ज्यादा वो स्टूडेंट्स हैं जो खास तौर पे इस फील्ड के हैं और आम तौर पे बाकी जो है इट्स अ वेरी डाइवर्स पार्टिसिपेशन, यू नो. तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी ये बताया लास्ट टाइम वी हैड डिस्कशन ऑन दैट कि वी हैव वेरी डाइवर्स पार्टिसिपेशन. I mean, we have 19 departments in total in Thali University, Bakar, and 15 departments are sitting right here. And this is the way, I mean, this is the theme, this is the basic of that project, this project, क्योंकि हमने इसकी projection जो है वो is not limited to any specific program or specific field. So it's a generalized. So, and we want to gather as much as people from diverse areas who can have their benefits and उसके लिए जो है वो हम मुफीद साबित हो. तो हमारी कोशिश यही है. एंड क्योंकि ये इनिशिएटिव हमने पहले ले चुके हैं यहाँ पे इस हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसी की ये कड़ी है. और ये फर्स्ट फिजिकल सेशन था थल यूनिवर्सिटी में एवर फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, यू नो, फ्रॉम द TNS, जो ब्रिटिश काउंसिल का जो इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. सो दिस फिजिकल सेशन, फर्स्ट फिजिकल सेशन. और हम थोड़े से नर्वस भी थे इस हवाले से, वो इस वजह से कि ये जो तमाम सेटअप है ये इट्स न्यूली डेवलप्ड, यू नो, और वी वर कंफ्यूज दैट हाउ इट विल वर्क, यू नो. So you see, there were some little bit problems during the session, connectivity and so on. लेकिन ये एक्सपीरियंस है, हमें सीखने का मौका मिला यहाँ से. We will try to overcome that one. तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा आज. And at the end now, if you please fill out that form. बल्कि ये faculty members के लिए भी मेरे पास है. If I have the page here. फिर हम बाहर जाके स्कैन करके बेटा ये फिटना कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. QR कोड मैम ये स्कैन कर सकते हैं. चल रहा तो बाहर करके आ जाए. नहीं वो अभी अब बाहर जाएंगे for the purpose that we will have some refreshment. So during that refreshment you can do it. Okay. तो लेकिन ये फिल लाजमी कीजिएगा. ये आपके लिए तो चलो ठीक है, वो सर्टिफिकेट का थोड़ा सा हमने लालच दिया हुआ है ना, तो लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक कि इस प्रोजेक्ट को रिफाइन करने के लिए और इस प्रोजेक्ट के को स्मूथली रन करने के लिए. एंड देन वी विल हैव आल्सो रूम टू एक्सटेंड दैट प्रोजेक्ट. तो हम अपनी जो गलतियां हम करते हैं या कोई ऐसे ड्रॉबैक्स उसमें आ गए हैं खुदा ना खास्ता, तो उनको हम नेक्स्ट लेवल पे जो है वो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है जी. तो
Ma'am, we will have the plaque ceremony a little bit, and then we will have a lot of snaps, and then, I mean, so I would, at the end, I would request Ma'am Iram Jamil to come on the stage for the plaque presentation. And I would also request to our resource person today, Dr. Usma Ashik, please come on the stage. मेरा ख्याल है इस साइड में आ जाए तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का अनदर मॉडल ये सब क्या हाल है आपके, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? थैंक यू सो मच। नहीं होगी, कह नहीं सकती हूँ मैं। सफदर जीते रहे, सफदर हमारे पास PhD कर रहे हैं अच्छा, पंजाब माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। Ma'am, please, the flag for. Thank you very much. Thank you. Please have a seat. Yeah, ma'am. Please let. एक मेरा ख्याल है ग्रुप फोटो जो है वो अपने ले लेना चाहिए आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग दैट्स, तो एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। अच्छा, अनाउंसमेंट ये है कि आई थिंक वी शुड ऑफिशियली क्लोज दैट सेशन, तो स्टॉप इट।